meeting is being recorded. So recording has been started. We can start, sir. Gunavat sir. कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में चल रही इस वेबिनार श्रृंखला का आज 108वां एपिसोड। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जो देश के अलग अलग अंचलों से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं, उसकी पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत का सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर उषा साहनी, जो मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य कर रही हैं। साहित्य की अनेक रचनात्मक विधाओं के साथ उनका सक्रिय जुड़ाव रहा है। 3 काव्य संकलनों के साथ साथ एक लघु कथा, दीर्घ कथा और साथ ही समीक्षा संबंधी कुछ पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी है। सोशल मीडिया पर निरंतर आप अपनी कविताओं के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। इस वेबिनार श्रृंखला की आयोजन सचिव के रूप में पिछले लगभग 3.5 वर्षों से और कम्युनिकेशन टुडे के संपादकीय टीम में भी आपका सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैं डॉक्टर उषा साहनी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। A very warm welcome to one and all present here on this virtual platform, where we are organizing 108th webinar in collaboration with Bharati Vidyapeeth, Indraprastha University, New Delhi. We have been working on this webinar series since 2nd of October 2020. That was a crucial time, the COVID period, when we started this, and the dedication, determination of Professor Sanjeev Bhanawat brought 100 webinars at stretch without worrying that from online things went offline as well. But then he continued to take care of this series. We completed 100 webinars on 25th of October 2023. This journey had been really blessing and fortunate for all the media people, those who were willing to get a lot of knowledge through the Communication Today Media Bilingual Journal, again, whose editor is Professor Sanjeev Bhanawat, the one who took an initiative to work in both the languages, Hindi and English, also benefiting the students, the scholars, media academicians, as well as the practitioners who were able to put their thoughts and ideas in black and white through this research journal, Communication Today Media Bilingual Journal. Professor Bhanawat has not left any stone unturned to bring out various special issues also, so that people can really go for their research works on specific topics related to media education.
Not only that, this journal has been taken care of for the research works by a few scholars, and they have worked on the journal as well. After completing 100 webinars under the umbrella of communication today and a very strong guidance of Professor Sanjeev Bhanawat, Professor Huda came into and a positive collaborative effort that made this journey more technically sound and, of course, a vibrating one. Because that's true, when we happen to make academic associations, definitely we do more better going ahead to these steps. So this association brought not only this media fraternity in light, also the technology part also came in front with the efforts of Professor Huda. And of course, when we are appreciating our guests and welcoming them, the heart of Professor Huda, which is having that literary touch also, the poetry, etc. They are also giving that warm welcoming messages through his words. And of course, this collaboration of Professor Bhanawat's understanding and Professor Huda's, this is again something, a new blessing sort, which is giving more and more insights to the participants who are joining us through this virtual platform. Today, as Professor Bhanawat told, that this is 108th webinar, and we are going to talk upon digital democracy, the impact of social media on politics. We all know that these days social media is the one which is actually flourishing like the fragrance of anything that is delivering that feel that something can go with the air movement. That way we are working upon the social media. And as far as I understood, truly it's fact that the politics is being, of course, influenced also, and getting many positive as well as few negative sides also, and giving that influence on the politics in a way that earlier the things that people were not aware about, those people who were into politics, now social media is making things easy so that people can really understand that who all are there coming in the politics and how the politics is working. Because otherwise we all know, we understand this term as a negative term, but in real, politics is something which is itself a neutral term, but how we are actually assessing it, that has to be very clear. But then social media at times is giving a benefit of doubt also, and giving a fair transparent vision also, that how we have to understand this politics and work for the right side. I have been observing many a times that the influencers and the people who are regularly working upon these social platforms, even the leaders who are actually leading the common people, they are picking up their flashes to impress and make people understand that how these political leaders and this politics is actually right for those people, and they have to accept that whatever steps they are taking, that is correct. But now again, we people are supposed to understand that what is right and what is wrong. Henceforth, this social media, this platform is definitely giving all those positiveness so that the right democracy can take place. Today, for this particular topic, we have eminent speakers amongst us: Professor Anup Srivastav, former Joint Secretary from Education, Government of Rajasthan, Jaipur. Also, we have Professor Anand Pradhan, IIMC, New Delhi, and Professor Trishu Sharma, Dean and Director, MIT School of Communication, MIT University, Gwalior, MP. Now, I would like to get back to Professor Sanjeev Bhanawat for the further proceeding of the webinar. Thank you so much, sir. बहुत बहुत आभार डॉक्टर उषा साहनी, आपने इस वेबिनार की पृष्ठभूमि के साथ साथ आज के इस विषय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। और जैसा आपने कहा कि हमारे साथ
एक ऐसा टेक्नोक्रेट भी है जो मूलतः तकनीक के विद्यार्थी हैं, लेकिन एक साहित्यिक हृदय भी उनके पास है। अपनी प्रवाहमयी वाणी के माध्यम से और उसमें वो साहित्यिकता का पुट देते हुए जिस तरह कविता का उपयोग करते हैं, जिस तरह शेर व शायरी के माध्यम से अपनी बात करते हैं, बहुत सरल, सहज और रोचक तरीके से, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, प्रोफेसर एम.एन. हुडा, जो दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय विद्यापीठ के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। संयोग से हमने पहले भी कई बार अपनी इस वेबिनार श्रृंखला में इस बात को रेखांकित किया है कि एक संयोग होता है उनके एक अकादमिक आयोजन में जुड़ने का, और वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है हमारी इस वेबिनार श्रृंखला की 100 कड़ियां पूरी होने के बाद। और हमने ये जॉइंट एसोसिएशन में इस यात्रा को आगे बढ़ाया, और जैसा डॉक्टर उषा ने कहा कि तकनीकी दृष्टि से भी हमें इसमें न सिर्फ बल मिला है, बल्कि एक व्यापक जो ऑडियंस है उसके साथ भी कहीं हम पहुंच पाने का एक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर एम.एन. हुडा एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल का प्रकाशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्कोपस इंडेक्स आपका ये जर्नल है, जिसके माध्यम से आपने देश दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं, जो आईटी और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी शोध को एक वैश्विक रूप से पहुंचाने के प्रयास किए हैं। स्प्रिंगर की ओर से ये जर्नल आपका प्रकाशित हो रहा है, और जर्नल की जो गुणवत्ता है, हालांकि हम डायरेक्टली उस विषय से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जब मैं इनके ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैंने जब वो इतना करीब 1000-1500 पृष्ठों का वो जर्नल देखा तो निश्चय ही मुझे एक आश्चर्य होना स्वाभाविक था। और जब मैंने उनसे पूछा तब मुझे मालूम पड़ा कि कितने लंबे समय से वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे डायनेमिक लीडर प्रोफेसर एम.एन. हुडा को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप सभी के स्वागत में अपने कुछ विचार अभिव्यक्त करने के लिए। प्रोफेसर एम.एन. हुडा। Good evening, everyone. Am I audible, Priyanka? Yes, sir. Yes, sir. That's great. So, at the outset, let me take this opportunity to welcome my valued speakers today, who are themselves an accomplished professionals in their respective domain. We have Professor Anup Shrivastava, former Joint Secretary, Ministry of Education, Government of Rajasthan, Jaipur. We have Professor Anand Pradhanji. Many of us have seen him on television for many of the debates, who is from Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. And we also have Professor Tirshu Sharma-ji, who is Dean and Director, Amity School of Communication, Amity University, Gwalior. My dear friends, I also take this opportunity to welcome all my friends and participants from various parts of the country and from various walks of life for this 108th National Webinar on Digital Democracy, the Impact of Social Media on Indian Politics. Dear friends, जैसा कि डॉक्टर उषा ने और प्रोफेसर बनावत सर ने ब्रीफ किया कि बनावत सर ने जब सेंचुरी लगाई, इसी बीच में हमारी उनकी मुलाकात हो गई और हमने ये डिसाइड किया कि जो काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें हम जुड़ के कुछ सीखने का प्रयास करें। हम कुछ ऐसा काम करते हैं टेक्नोलॉजी डोमेन में, मीडिया के डोमेन में हमारा इस तरह का कोई काम नहीं था, और हमने बनावत सर से रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वो भारतीय विद्यापीठ के लिए एक सौभाग्य होगा अगर आप हमें जोड़ें, और उन्होंने होल हार्टेडली इस कोलैबोरेशन को स्वीकार किया। एंड फ्रॉम 101st वेबिनार वी टुगेदर आर डूइंग इट। डियर फ्रेंड्स, बनावत सर के बारे में डॉक्टर उषा ने जो कहा है वो बहुत कम है। मैं तो पिछले 2 सालों से सिर्फ उनको जानता हूं, और उसके बाद पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीने से हम टुगेदर ये प्रोग्राम कर रहे, तो उनको बहुत करीब से पहचानने का मौका मिला है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अपने बारे में भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसा बनावत सर ने बताया, मैं टेक्नोलॉजी का छात्र हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो टेक्नोलॉजी मेरे लिए प्रोफेशन है और साहित्य मेरे लिए पैशन रहा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा और टेक्नोलॉजी में अपने प्रोफेशन के तौर पे सेलेक्ट किया, चूँकि उस वक्त मेरे टीचर्स ने अर्ली 90s एंड लेट 80s में ये बता दिया कि भाई साहित्य में अगर जाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी।
तो मैंने कहा कहाँ नौकरी मिलेगी? तो कहा भाई कंप्यूटर साइंस बिल्कुल अपकमिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मैंने कहा सर वो पढ़ लेते हैं। तो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू किया और पिछले 30 सालों से कंप्यूटर साइंस में इंडस्ट्री और कॉलेज में काम करता हूँ और इसको और समझने की जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा पैशन हमेशा साहित्य की तरफ रहा और इस वजह से मैं अपनी जो स्टूडेंट लाइफ थी मेरी अलीगढ़ की, उसमें भी मैं कनेक्टेड रहा यूनिवर्सिटी के सारे लिटरेरी क्लब, यूनिवर्सिटी मैगजीन से। और आने के बाद मैंने मुझे लगता है कुछ तकनीकी हाँ, व्यवधान कुछ हो गया है ना? तो मुझे भी लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है सर के साइड से। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए जब तक वो ज्वाइन करते हैं हम हमारे सभी जो आज के अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, उनका ई बुके से स्वागत करते हैं। मैं भारतीय विद्यापीठ के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है प्रियंका सिंह, उनसे अनुरोध करूंगा कि ई बुके से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। जी। संयोग से गुड़ा जी डिस्कनेक्ट हो गए। Am I audible now? हाँ सर, हाँ जी। यस सर, यू आर ऑडिबल। पता नहीं बीच में टेक्नोलॉजी में कह रहा था, टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूँ तो टेक्नोलॉजी ने कहा आपको सबक सिखाता हूँ। बट एनीवे, तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक रखा गया है उस सर टॉपिक अभी वो ई बुके से स्वागत हो रहा है, आप अपनी टिप्पणी के साथ अपनी बात को फिर शुरू कीजिएगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ। ई बुके के बारे में तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ई बुके का मतलब ये नहीं है कि मैंने बुके यहाँ से प्रेजेंट किया। बुके के साथ जो हमारी ख्वाहिश और हमारा प्यार जुड़ा है, वो खुशबू आपके घर पे जहाँ कहीं भी आप हैं, आपकी ऑफिस तक महसूस होना चाहिए। और इसलिए बुके के लिए 2 पंक्तियां लिखी थी कि खुशबू महसूस करने के लिए जरूरी नहीं है कि बुके मेरे हाथ में हो, बल्कि इसके लिए ये कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल में हूं कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूं। तो बुके प्रियंका शेयर कर रही है, लेकिन आप हमारे अतिथि जहां भी हैं वो उसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि हाँ ठीक है बुके जी, बनावत सर के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें पैशनेट होने की जरूरत है। जब हमें एक पैशन होता है, हमें जुनून होता है, तो तरीके अपने आप निकल आते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट व्हेन देयर इज अ विल देयर विल बी अ वे। और जिस पैशन के साथ अपने सुपर एनुएशन के बावजूद वो यह काम नॉलेज डिसेमिनेशन, नॉलेज शेयरिंग, पब्लिकेशन का कर रहे हैं, वो अपने आप में सराहनीय है और अपने आप में वो इंस्पायर करने के लिए हम सब लोगों को। और उसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, बशीर बद्र ने अपनी गजल में कहा था कि पैशन अगर हो तो आप कैसे उस पैशन को समझ पाएंगे। वो उसके लिए कहा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है मेरी, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है मेरी, राह में मुड़कर मील का पत्थर नहीं देखा। आपको पता नहीं नंबर 1 से शुरुआत की बनावत सर ने, कब 100 पे पहुंच गए और शायद 100 पे पहुंचने के बाद कोई सोचता कि अच्छा मैं मंजिल 100 पे आ गया हूं, रुक जाऊं, लेकिन रुकने का नाम नहीं है। तो जब से चला हूं मंजिल पे नजर है मेरी, और वो मंजिल हर दिन बढ़ती जाती है। कहते हैं ना, जर्नी टुवर्ड्स एक्सीलेंस इज अ नेवर एंडिंग रोड। तो वो नेवर एंडिंग रोड के जैसे बढ़ती जा रही, 100 के बाद 101, 101 के बाद 102 और आज हम 108 में लगे हैं। ये बनावत सर के लिए बहुत ही एप्ट होता है और ये भी वो हमेशा कोशिश करते हैं। आप देखें पिछला एक हफ्ता और अगला एक हफ्ता तो कंट्री में भी काफी हैपनिंग है, बहुत सारे इवेंट्स हो चुके, बड़े से बड़े इवेंट जो पिछले 5 सदियों में नहीं हुए। और कल रिपब्लिक डे है, आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की बधाई। और उसके बाद जो इवेंट्स हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, काफी हैपनिंग वीक है। तो बनावत सर ने हमारे इस वेबिनार की श्रृंखला को भी हैपनिंग रखा है। आज एक 108वां वेबिनार है, 29 को 109वां है और 30th को 110वां वेबिनार। आप इमेजिन करें क्या हमारे लिए भी हैपनिंग है, बैक टू बैक वेबिनार सीरीज है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब ऐसा काम होता है तो उस काम के लिए यही कहना सफिशिएंट है कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। तो इसी जुनून के साथ बनावत सर काम कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें जुड़े हैं, उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सारे लोग अपने अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इससे। आज का जो टॉपिक रखा गया है, डिजिटल डेमोक्रेसी, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। मैं डिजिटल डेमोक्रेसी के बारे में सिर्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ये बताऊं
कि जो ट्रेडिशनल लाइफ से हम डिजिटल लाइफ में शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे डिजिटल डेमोक्रेसी की बात करें, डिजिटल गवर्नेंस की बात करें या ई गवर्नेंस की बात करें, हमेशा जब टेक्नोलॉजी यूज होती है तो उसके पॉजिटिव साइड्स बहुत सारे होते हैं। ये हो सकता है कि उसके नेगेटिव साइड्स भी बहुत सारे हों जिसको लोग मिस यूज कर रहे हों, जिसकी तरफ डॉक्टर उषा ने इशारा करने की कोशिश की। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, बहुत सारे कंटेंट बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव और बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो शायद हमें बहुत ज्यादा डिग करने के बाद मिले, वो बहुत आसानी से हमें डिजिटल डेमोक्रेसी और डिजिटल इन्वायरमेंट में, डिजिटल इकोसिस्टम में मिल रहा। लेकिन उस कंटेंट को हमें समझने और परखने की जरूरत है कि वो कितना ऑथेंटिक है और कहां हमें किस कंटेंट को नहीं कंज्यूम करना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डिजिटल डेमोक्रेसी, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो अभी भी हम ऑथेंटिसिटी की फिक्र में उन्हें डिस्कार्ड कर दें या दूर रखें। हमें ऑथेंटिसिटी को खुद अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्सेज से चेक करना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डिजिटल डेमोक्रेसी में नहीं जीना चाहते हैं तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जो चेंज है, जो बदलाव है, जो बदलता परिवेश है, हमें उस परिवेश के साथ जीना है। और नहीं जिएंगे तो शायद इस वर्ल्ड के इकोसिस्टम में, पूरे यूनिवर्स के इकोसिस्टम में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ गालिब सेड दैट उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो हम डिजिटल डेमोक्रेसी के साइड इफेक्ट्स हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी में अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रही हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी से जो इंपावरमेंट मिली है सिटीजन्स को, उसका मिसयूज हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन भी हम करते हैं मिसयूज, एज अ मीडिया पर्सनल भी हम मिसयूज करते हैं। और सोशल मीडिया का कंजम्पशन जो घरों तक और हर एक इंडिविजुअल तक गया है, उसके जरिए हम गलत खबर भी फैलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिजिटल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट न करें। हमें ये लिटरेसी इतनी होनी चाहिए, जैसे मीडिया लिटरेसी में पढ़ाया जाता है, हमें इतनी समझ होनी चाहिए जहां हम ऑथेंटिसिटी और अनऑथेंटिक रिसोर्सेज में डिफरेंशिएशन करें। लेकिन डिजिटल डेमोक्रेसी के साथ हमें चलना है। और इसी टॉपिक के लिए आज 3 हमारे पास अतिथि हैं जो अपने अपने डोमेन के अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हैं। उनसे हमें सोचना, समझना और सीखना है कि किस तरीके से हम इसे अपने बेनिफिट के लिए, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूजेस के लिए, प्रोडक्टिव यूजेस के लिए यूज करें और टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट से बचें। इन्हीं बातों के साथ मैं कंक्लूड करता हूं। एंड थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने 29 और 30 के लिए रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर करें। इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी यूट्यूब पे हो रहा है। यूट्यूब का लिंक बनावत सर पूरी रिपोर्ट के साथ शेयर करते हैं, जो कम्युनिकेशन टुडे के वेबसाइट से और भारतीय विद्यापीठ के बीबीआई कैम के वेबसाइट से शेयर किया जाता है। और ये सारी रिपोजिटरी अवेलेबल है जो आने वाले किसी भी दिनों में आप उसे रेफर कर सकते हैं। इस तरीके की टॉक और इस तरीके का सेशन आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे आसानी से नहीं मिलेगा। तो जो हमने साधन तैयार किया है लर्निंग का, जो हमने साधन तैयार किया है अपने को इनलाइटन करने का, अपने को एम्पावर करने का, उसको यूज करते रहें। थैंक यू सो मच। अगले प्रोग्राम के साथ अगले लेक्चर में हम 29 को फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वेबिनार सीरीज कोविड के बैकड्रॉप में शुरू हुई थी। कोविड दोबारा दस्तक दे रही और जब जोरदार सर्दी होती है तो हमें खतरा हो जाता है कहीं कोविड तो नहीं हो गया। तो कोविड के बाद हमें बताया गया प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन सब अप्लाई करना है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and keep learning despite all round disruptions in and around us. Thank you so much. Wish you all the best. God bless you all. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हुडा साहब। स्व परिवर्तन का आपका आह्वान और शायद उसी दिशा में यह हमारी वेबिनार श्रृंखला, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि विचारों का निवेश एक दिन में नहीं होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है विचार विनिमय की। और उसी आधार पर हमने इस श्रृंखला को प्रारंभ किया। लगभग 200 घंटे की रिकॉर्डिंग केवल हमारी वेबिनार्स की हमारे YouTube चैनल पर आज उपलब्ध है, जिसमें न सिर्फ मीडिया से जुड़े हुए बल्कि मीडिया से अतिरिक्त भी जो समाज के अन्य क्षेत्र हैं, वो प्रशासन भी हो सकता है, थिएटर है, फिल्म, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, राजनीति है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने भी मीडिया के संबंध में किस तरह की सोच रही है। हमारी कोशिश रही है कि विभिन्न वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं वो आकर के इसके बारे में बात करें। जैसे आज भी हमने कोशिश की, एक राजनीतिक शास्त्र के विद्वान को बुलाया और 2 हमारे मीडिया शिक्षक और मीडिया कर्मी जिनका मीडिया के साथ भी जुड़ाव रहा। तो कुछ इस तरह की सोच को लेकर के हम हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल लोकतंत्र जिसकी बात अभी तक की गई, और जैसा हम अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र वस्तुतः जनता की सहभागिता है, पहले भी होता रहा है,
लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमको एक ऐसा मंच दिया है जहां हम पारस्परिक संवाद को स्थापित कर सकते हैं और करने का प्रयास भी किया गया। मुझे लगता है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आई, डॉक्टर कस्तूरी रंजन उसके चेयरमैन थे, और जब भी आह्वान किया गया मीडिया के माध्यम से कि लोग अपने सजेशन दें, लगभग 2 लाख सुझाव उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिले। शायद ही देश में किसी नीति को तैयार करते समय इतने अधिक लोगों ने उसमें सहयोग दिया होगा। उसकी आलोचनाएं हो सकती है, मैं उस बात की ओर नहीं जा रहा हूं कि उसकी क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं, लेकिन जन सहभागिता की यदि हम बात करें तो आज डिजिटल डेमोक्रेसी ने इस तरह की एक सूचना और संचार तकनीकी व्यवस्था हमारे सामने उपलब्ध करा दी है जहां ये सहज संभव हो गया है कि हम कहीं ना कहीं डिबेट कर सकें। आज एक चैनल पर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आता है, प्रतीकात्मक बात कर रहा हूं, उसके बाद ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर एक पूरी की पूरी डिबेट आ जाती है कि इस चैनल के उस इंटरव्यू ने इस तरह के सवालों से बचने की कोशिश की, तो एक पब्लिक डिबेट शुरू हो जाती है उन सारे मुद्दों को लेकर के। तो मुझे लगता है कि डिजिटल लोकतंत्र, जहां हम जन सहभागिता की बात करते हैं या निर्णय लेने में कहीं आम आदमी की सहभागिता किस तरह से हो सकती है, निर्णय प्रक्रिया के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कहीं ना कहीं किया गया है। या यूं कहूं कि हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनके साथ एक आपस में संवाद करने का जो पुल है वो इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से कहीं स्थापित हो सकता है। व्यक्तियों, समुदायों और सत्ता, इन तीनों के बीच में कहीं संवाद है। वो डिजिटल डेमोक्रेसी कहिए या ई लोकतंत्र कहिए या इंटरनेट लोकतंत्र कहिए, जो तकनीक ने आज हमको ये सुविधा जो है उपलब्ध करा दी है। 2016 का यूएस का चुनाव, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने किस तरह से ट्विटर के माध्यम से ये सारी की सारी जो अपना इलेक्शन कैंपेनिंग है उसका उपयोग किया था। थोड़ा और पीछे जाऊं, 2011, शायद आज ही का दिन था, 25 जनवरी 2011, जब एक 18-20 साल की नवयुवती के एक फेसबुक पोस्ट ने हुस्नी मुबारक जैसे तानाशाह के खिलाफ, उसके कुशासन के खिलाफ एक जन क्रांति को पैदा करने का प्रयास किया। किस तरह से उन्होंने पूरे देश के जनमत को एक तरह से आकृष्ट किया और एक जगह इकट्ठा किया। फिर बहुत सारे प्रयास हुए, ईरान में हुआ, हालांकि वो ट्विटर क्रांति जिसे कहते हैं, हालांकि उसको कुचल दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन कहीं जनता के उस विरोध को प्रदर्शित करने के लिए, उस समुदाय को जागृत करने के लिए इन माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने की संभावनाएं इसमें निहित हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये भी एक मूवमेंट चला। वो अलग बात है कि हम सफल नहीं हो पाए जन लोकपाल बिल को लेकर के, कहीं अन्ना हजारे वर्सेस अरविंद केजरीवाल, उनके बीच में मतभेद रहे या नहीं, लेकिन कम से कम देश में एक माहौल तैयार किया गया था और इसके पीछे सोशल मीडिया की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। पाकिस्तान, इटली, कई देशों में इस तरह के आंदोलन चले, कहीं सफल हुए, कहीं विफल हुए। कोविड की बात अभी हुडा जी कर रहे थे। कोविड में डिजिटल माध्यमों की एक कितनी बड़ी भूमिका रही है उससे हम सब लोग परिचित हैं। जब सूचनाओं के सारे मार्ग बंद हो रहे थे, अखबारों के हाथ लगाते हुए हम डर रहे थे, ऐसे दौर में डिजिटल मीडिया ने भी अपनी एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह किया। तो हम कह सकते हैं कि इन माध्यमों से एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है और हमारे दैनिक जीवन में जिस तरह से उसने प्रवेश किया है, सही है। हुडा जी की बात से हम सहमत हैं कि उसके साथ कई खतरे और चुनौतियां भी हैं और शायद हर नई तकनीक अपने साथ नए खतरे और चुनौतियां लेकर के आती हैं। ये सब हम जानते हैं। पाषाण युग से लेकर के इस डिजिटल क्रांति के इस पूरे दौर में ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं जहां उस तकनीक ने जीवन में सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, तो बहुत सारी दुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, लेकिन डिजिटल माध्यमों ने किस तरह से हमारे पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ पब्लिक डिबेट को बड़ा बहुत ही प्रभावी या एफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में अपनी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उन सारी चुनौतियों और थ्रेट्स के बीच में हम किस तरह से डिजिटल, क्योंकि इसके आयोजन के पीछे यही था कि एक देश अपना लोक जो एक ऐतिहासिक दिन है गणतंत्र दिवस, तो उन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, लगभग 1 सदी से अधिक की लड़ाई उस विदेशी हुकूमत के खिलाफ हमारी रही। तो उसकी पूर्व संध्या पर हम इन्हीं मुद्दों पर बात करें। 2014 का चुनाव हमारे सामने है, हम सभी ने देखा किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया गया। अब डीप फेक और न जाने एआई और कितनी तरह की तकनीक हमारे सामने आ गई है जो नई तरह की चुनौतियां खड़ी कर रही है और शायद आने वाले समय में इलेक्शंस में इनका बहुत अधिक उपयोग होगा। जहां हमारे जनप्रतिनिधियों के इलेक्शन के जो वो भरते हैं, अपना फाइल करते हैं नॉमिनेशन, उसकी जानकारी देने की बात हो, पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने की बात हो, कितने तरह के तौर तरीके हैं जहां सोशल मीडिया का
आज उपयोग किया जा रहा है। तो इन सब चुनौतियों के बीच एक राजनीति शास्त्र का विद्वान क्या सोचता है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो राजनीति शास्त्र का अध्यापन अपने पूरे करियर में करते रहे, लगभग 3 दशक से अधिक समय तक राजनीति विज्ञान के अध्येता रहे हमारे बचपन के मित्र प्रोफेसर अनूप श्रीवास्तव, जिनके साथ अपने कॉलेज में हमने जाने कितनी डिबेट्स में साथ साथ सहभागिता की, आज फिर एक मंच पर हम साथ हैं। तो अनूप श्रीवास्तव ने हमारे ही विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और लगभग 3 दशक तक राजस्थान के विभिन्न जो सरकारी महाविद्यालय हैं वहां उन्होंने अध्यापन कार्य किया। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों के आयोजन से लेकर उसकी सहभागिता करते रहे और कालांतर में अपनी सेवानिवृत्ति के कुछ वर्षों पूर्व उन्हें राजस्थान के प्रतिष्ठित कॉलेजों के प्राचार्य के रूप में काम करने का मौका मिला। उसके बाद वो हमारा जो शिक्षा निदेशालय है उसके संयुक्त निदेशक रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर, और इसके बाद राज्य सरकार का जो उच्च शासन विभाग है, हमारा शिक्षा विभाग है, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी। और इस प्रकार से उन्होंने प्रदेश की जो उच्च शिक्षा की नीतियां हैं उनके निर्माण और उनकी क्रियान्विति उसमें अपनी महती भूमिका दी। पॉलिटिकल थ्योरी और रिसर्च मेथोडोलॉजी ये आपके एरिया के विशेष क्षेत्र हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। राजनीति विज्ञान की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं आईपीएसआर, जेपीए, राजशास्त्र समीक्षा आदि में आप निरंतर लिखते रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर अनूप श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि इस आज के विषय को वो किस रूप में देखते हैं, अपने कुछ अनुभव, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अनूप श्रीवास्तव। आवाज नहीं आ रही है अनूप? नहीं आ रही है अभी भी। फिर तकनीकी चुनौती है मेरे ख्याल। एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करें तो शायद हो जाए। पहले तो आ रही थी आवाज। I can't. प्रियंका, कैन यू सी हिम? मतलब वो है मीटिंग में है? हाँ हाँ, मीटिंग में है, दिख रहे हैं और अनम्यूटेड भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो जब ये तकनीकी समस्याओं से निपटे तब तक फिर आनंद जी को बुलाएं। क्यों अनूप, नहीं आ रही है आवाज? सर मैंने भी अपने साइड से चेक किया, सर के माइक में कोई इशू नहीं है, मतलब उनका ऐसा भी नहीं है कि उनका माइक म्यूट हाँ, है। अभी तो बात हो रही थी ना, पता नहीं। बात नहीं, आप लीव करके वापस ज्वाइन करने में किसी से हेल्प करवा दो और तब तक हम दूसरे हाँ, चलिए स्पीकर फिर को मैं करता हूँ। जब तक इन तकनीकी समस्याएं हल होती हैं तो हम बिना समय का अपव्यय किए हुए अधिक, मैं प्रोफेसर आनंद प्रधान जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आनंद जी से भी मेरा बहुत पुराना संपर्क रहा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आप एलुमनस रहे हैं। वहीं से आपने अपना मास्टर्स किया और वहीं से आपने अपनी पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। कुछ समय तक आपको आकाशवाणी में सहायक समाचार संपादक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और फिर आप मीडिया सेक्शन से जुड़ते हैं। ऑडिबल हो आप? हाँ, हेलो। हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल? यस हाँ, अब ऑडिबल हो। यस, आप ऑडिबल हैं। यस चलिए चलिए, तो फिर शुरू कीजिए आप ही, आनंद जी को फिर उसके बाद बुलाते हैं। Well, first of all, I want to thanks my childhood friend, Dr. Bhanavat, as well as organizing BVICM and the person who are associated with this institution. As a political scientist, because what I presume that I am amongst the keen student of journalism, and my thinking is bit away from what the general trend of perception of the thing regarding mass media and politics. So in this topic, I have my own view and my own perception of explaining and deliberating my ideas. So we have 3 main concepts: social media, digital democracy, as Dr. Saab is just talking about, and Indian politics. So you all are well aware about the social media.
but just to ensure myself. It's not for you. For me, social media is an interaction among the people, individual, organization, for aggregation, creation of interest and ideas through virtual community and internet. What my perception is about social media is that it's having a platform, different platform like Slack or LinkedIn, Facebook, Twitter, and so on. Number two, it's having a content. And number three, operationalizational unit. Operationalizational unit is either it may be individual, it may be a community, it may be a group or anything. So my understanding of social media is this. On the basis of this, I am building my thesis. Now we will come to digital democracy, as Dr. Huda has just shown and talked about the digital democracy. But for me, the digital democracy is a tool and techniques of social media in a political process to shape it according to one's ideas and interest. Until now, in my view, it's a very fuzzy concept. Still, it requires a lot of clarification. Because this is the concept that links processes and institution of decision making with its mediating digital infrastructure, which is having a two dimension. One is analytical and another is normative dimension. So here I need not to talk about its two dimension, analytical and normative dimension, because for doing so, we will drift away from the main topic. So in a nutshell, digital democracy is a participation of people through tools and techniques of social media in political or democratic process. And the third is Indian politics. Now, we have a very misconception about the politics. We used to consider a phenomena, an ideology, or anything similar to politics. Politics is just a result. It's just an outcome. So politics is the outcome of what? It is the outcome of a political process. And if you want to understand the right connection and interaction between social media techniques and democratic process or a polity, then we have to understand what is political process is. So political process is a part of social process. Social process starts with human action. It attracts reaction. Then interaction comes place. And when there is a continuation of that interaction with a certain objective, with a certain continuity, then it becomes the process. And in social process where the power is implied, when the dynamics of power is implied in social process, then it becomes the political process. And this political process is having a continuum. Your institutions, your phenomena, rules, ideology, they are all result of this political process. So there is a need to understand that this political process is ultimately the result of individual action. And here comes the person or anyone who is having the maximum knowledge or data about the individual choices, interest, is having a power to control the system. May it be an economic system or a political system or any other system. So to understand now the role of social media and the individual, if we will look into this prism, we will come to some other conclusion. Now the democratic process, what democratic process is, because in our topic, democratic process is there. It is just a structural and behavioral model for the continuation of
and operationalization, continuation, and regulation of political process. So democratic process only provides us only a model how to operate political process. Now, in a political system or in a democratic system, what democratic system is, what political system is, political process, how decision making process is being continued. So, in any political system, and political system results into politics, political events. So there are 3 or 4 stages of political process. Number 1 is a demand. Now you can either see it as a demand, you can see it as an interest or as an objective. Initially, individual has to identify individually, then collectively, what their demands are, what their interests are. So there is a 3 stages: identification, consolidation, and aggregation of demands, interests, and objectives. Here social media influences. Nowadays, it's a very well-known fact that what my demand is not being decided by an individual, but it is decided by the corporation. It is decided by the political party. It is decided by any organization which is having a control over the data regarding the individual or a human being. For example, as a citizen of Jaipur, my priority is that there must be a free flow of traffic. Today, Mr. Macro has come. I welcome him, but all roads are closed. So for me, what is important? Business is important. For me, approach to medical system is important. For me, many other needs are important. But through social media, this perception is forced to percepted in each and every individual that what is important for you, for community, for India is to have a better relationship with other country on the cost of, and we are pressurized to understand that cost is nothing in comparison to what we are getting into. So it's a very important that our demands, the system's demand, is not decided by the people, it is decided by someone else. So democracy is a participation of individual in decision-making process. Why he participates? To fulfill one's own demand. And what is his demand? He himself doesn't know. And at least a community or group is not in position to decide what its demand is. And suppose this stage is crossed. Then second stage comes conversion of demand into political decisions. In every organization, this is done by some authority. And in a political system, it is done by the government. So demand is there. Your demand is on in priority. It is going to be converted into policy or into rule. But what happens? Again, through lobbying through social media. Again, through lobbying, that nature of demand either changes, the emphasis of your interest is being changes, or that demands at the last moment is being dropped off. And the finest example is of a Nippo Steel in Odisha and your farmer movement. The farmer laws, as I have gone through, has talked about all that demands which is raised by the agitators. But still that ecosystem has been developed as if government is going just against the interest of the farmers. So demand is aggregated, demand is reached to the authority, but that conversion has not taken place.
Number three, when the conversion has taken place, suppose the law has been made, policy has been made, now there comes execution. Who executes the demands? Again, administrator. Now there are pressure on administrator through social media. Again, and a simple thing, there are unauthorized structure. I'm not talking in terms of mandir, masjid or something, anything else. In every hook and corner of India, are they demolished? And if demolished, why on a particular time? Why after a particular event? If demolition of unauthorized structure is the smoother part of a executional policies, there will be no problem. But again, it has been prevented. Who prevents? Who goes to the administrator? Physically, nobody goes. It is the pressure through social media. It is the pressure through different techniques of social media. I will talk to you later on about this, through which it is being done. Then what has been done must be participant, that means citizen should get the feedback what has been done. Now this feedback is again manipulated by the techniques of social media. Some tech feedback is fair enough. I will not say that every feedback, every channel, every platform, every technique is being manipulated, but some techniques, some platforms are manipulated. For example, at the time of farmers movement, if you post anything against that farmer protest and you are not a celebrity, that means that blue tick person, then your comment has been hidden by the Twitter. And that is the key where the Twitter and Indian governments collide. So the problem is the person or a group which is controlling this social media platform, they are in a position to control what has been communicated, what is to be communicated to the people, and whatever is being communicated will be perceived by the Indian people, and their thought process will be made accordingly, and whatever the thought process is made, action will be accordingly to that. Again, so on the basis of this, it's not my original one, to be frankly enough. I have copy paste. I have made my own model, A to I model. That is means actor to individual model. So let me accept this model is based on B2B model. That is in business management. It is called business to business model, which you must have heard this concept in Shark Tank. So A to I model means actor. Who is the actor? It may be a party, political party. It may be a leader. It may be organization, conglomeration of corporation or companies. And on the other side, individual. So how A manipulates, communicate to individual through social media, through techniques. Number one, SM analytics, social media analytics. Now, there are search engines which analyzing the data from social media, And for example, if we take the sentimental analysis, in short, what is sentimental analysis? Sentimental analysis means to assess what your sentiments for a particular phenomena or particular thing. Whatever you post, you speak, you deliberate, you like, you dislike,
It divided into three categories: negative, positive, and neutral. So on the basis of that, your specific group is being noticeable for the A. That means for actor. Now he knows what you like, what you don't like, what your biases are, what your values are, what your ideas are, and then he communicate accordingly to you so that you can act what he wants. Number two, SM marketing, social media marketing. That means branding of one's values and ideology and interest. And this is very common. Any concept which is being thrown in social media, if you closely notice any new ideas, any new value or objective, it will be having a particular support system. If an idea is given by X, you can very well know who will support it in that manner. We know all the, if we are friendly to social media, we know if this pro-left idea has come, or the rightist idea has come, or the reactionary idea has come, may it be for a politics, may it be for a society or for a religion or for anything. Who will support it? How it will be branded? And once your idea is branded, then that idea is bombarded to the select audience. And what is that select audience? That select audience on the basis of analytics, which you get from social media analytics. Number three, SMO, social media optimization. That means search engine optimization. So social media optimization means if when anybody hits social media on the basis of history, algorithm starts its working and providing you your choices dishes on your plate. And by saying that a false conviction is being made in yourself that whatever you are doing, whatever you are thinking is the right thing. And you have to do like that. Without knowing that, you have become the tool of someone else. Number three, political subject part relationship marketing. That means on the basis of online activities and online information, your actor and individual entered into a online relationship, directly or indirectly. And lastly, recruiting. Recruiting means when on the basis of your online activities, you have been targeted, then these actors select their potential target, and as a user, gradually you have been converted into activists. That module, I will give you two examples. In every WhatsApp group, there are some self-declared activists who take part, who take one side, and some opposes the other side. Though their livelihood may be something else, their interest may be something else, but they become the activist. And this is the model where the terrorist is being targeted and being prepared. So on the basis of points, through social media, through these techniques, our ecosystem is being developed. There are many different ecosystems. Ecosystem means certain objectives that are related and the content regarding this. They have an activist to support them. They have a friendly platform.
अनूप, आवाज गड़बड़ हो रही है, क्लियर नहीं है आवाज। स्पीकर के एंड पे शायद नेटवर्क की छोटी प्रॉब्लम होगी एट द एंड ऑफ द स्पीकर सर। हो सकता है, मेरे ख्याल इसको वाइंड अप कर लीजिए आप अब, है ना? कंक्लूडिंग रिमार्क्स, है ना? अनूप, ऑडियो क्लियर नहीं है अभी भी, ऑडियो क्लियर नहीं है अनूप। मनावर सर, हम दूसरे स्पीकर पे चल सकते हैं और हाँ, सर जब तक मेरे शायद ख्याल रिकनेक्ट कर बाद लेंगे में डिस्कशन वगैरह में हो तो डिस्कशन फिर और ऑब्जर्वेशन में हम सर का हाँ, कंक्लूजन ले लेंगे। ठीक है। राइट सर। तो चलिए, अब प्रोफेसर अनूप श्रीवास्तव ने राजनीतिक प्रक्रिया, लोकतंत्र की अवधारणा और सोशल मीडिया की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके प्रभाव है और किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनको नियंत्रण में रखा है, इनके पारस्परिक अंतर संबंध और प्रभाव, उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि हमारे सामने रखी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर आनंद प्रधान। मैं जैसा कह रहा था, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अलुमनस रहे, वहीं से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और आकाशवाणी के समाचार अनुभाग से आपने अपना मीडिया संबंधी करियर शुरू किया। आनंद जी देश के लगभग सभी अखबारों में नियमित रूप से लिखते रहे हैं, बहुपठित हैं और अनेक अकादमिक आयोजनों में आपकी सहभागिता नियमित रूप से होती रही है। संयोग से मुझे भी कुछ इस तरह के आयोजनों में आपका सानिध्य मिला है। जयपुर भी आप आते रहे हैं और इनसे मीडिया संबंधी विभिन्न विषयों पर अक्सर बातचीत होती रही है। हमारी इस वेबिनार श्रृंखला में पूर्व में भी आपने अपना उद्बोधन हमें दिया था और मीडिया के बाद मीडिया से आपने शिफ्ट किया मीडिया टीचिंग में और आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपने कुछ समय तक पढ़ाया और उसके बाद फिर आप आईआईएमसी से जुड़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो देश के कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जिसकी गिनती होती है, और वहाँ हिंदी पत्रकारिता के आप पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में भी वर्षों तक आप जुड़े रहे। भारतीय जनसंचार संस्थान के एक प्रमुख पत्रिका संचार माध्यम, उसके संपादन दायित्व का भी आपने लंबे समय तक निर्वहन किया। आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक वाणी प्रकाशन से शीघ्र प्रकाश्य है, जिसका शीर्षक ही है डिजिटल दौर में मीडिया एथिक्स, और शायद प्रोफेसर अनूप श्रीवास्तव ने जिन मुद्दों को उठाया था उनका कुछ समाधान या उन मुद्दों को उन्होंने अपनी दृष्टि से इसमें देखने का प्रयास किया होगा। आज जब पुस्तक प्रकाशित होगी तो उस पर और चर्चा हो सकती है। इसके पूर्व आपके दो प्रमुख प्रकाशन हमारे सामने आ चुके हैं, तमाशा मेरे आगे, चैनल शास्त्र और न्यूज चैनलों पर खबरों का तमाशा। लगभग 1.5 महीने तक आपको अमेरिका में रहने का अवसर मिला ओहियो यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के तहत, और इस तरह आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में मीडिया के परिदृश्य को बहुत ही निकटता से, गंभीरता से देखा परखा है। आपके जो मुख्य एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या स्पेशलाइजेशन, मीडिया एथिक्स, नियमन, मीडिया इकोनॉमिक्स, फीचर लेखन आदि, और ये आप इन विषयों को आईएमसी में अक्सर पढ़ाते रहे हैं। मैं प्रोफेसर आनंद प्रधान से अनुरोध करूंगा कि आपका जो अनुभव मीडिया शिक्षण और यो कहूँ छात्र राजनीति से भी आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे, वो जो आपका अनुभव और इतना व्यापक आपका यात्राओं का और उसका जो रहा है, वो अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करें भाई आनंद प्रधान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भानावत सर। इस ऑनलाइन सेमिनार में इस चर्चा में जुड़े हुए हमारे सभी सहभागी मित्र, संकाय के सदस्य और दूसरे प्रतिभागियों, प्रोफेसर अनूप श्रीवास्तव ने एक राजनीति विज्ञानी के बतौर राजनीतिक प्रक्रिया, डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का रोल और एक क्रिटिकल नजरिए से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनकी इकोनॉमी के बारे में बहुत विस्तार से बात कर ली है। तो मुझे लगता है कि मुझे
उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक स्टेज तैयार कर दिया है जहां हम थोड़ी बारीकी और गंभीरता से इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। और जैसा कि इस मिनट टू मिनट कार्यक्रम में प्रोफेसर भानावत ने मेरे पास भेजा था, मेरे पास कोई 10 से 12-15 मिनट का समय है, मैं उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। दो तीन बातें कहनी बहुत जरूरी हैं। सोशल मीडिया का राजनीति पर प्रभाव, और खास करके जो डिजिटल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये संयोगी है कि जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने पिछले दिनों एक पूरी कवर स्टोरी छापी, मीडिया इज द मैसेज। और उस कवर स्टोरी में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि 2024 में लगभग 3 अरब के आसपास, 3, साढ़े 3, 4 अरब के आसपास लोग अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दुनिया की जितनी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वहां इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, और बहुत ही क्रूशियल चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होंगे चुनाव, और उसमें मीडिया की भूमिका, जिसमें जाहिर है कि लेगेसी मीडिया की भी वो बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात भी कर रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा काफी तेजी से बढ़ी है। इसी दौर में खास करके जिस तरह से पिछले 1 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खास करके जनरेटिव एआई का जो इम्पैक्ट है, और डीप फेक और फेक न्यूज के बारे में जिस तरह की चिंताएं उभर करके सामने आई हैं, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि राजनीति विज्ञानी के बतौर भी और मीडिया के विद्यार्थी के बतौर भी हम सब लोगों के लिए, विचार के लिए, चर्चा के लिए और आगे के शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहली बात तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी का रोल है डेमोक्रेसी में, और जिस तरह से, और जिसको लेकर के कई तरह के विचार और चर्चाएं सामने आई हैं, एक तरफ जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहे थे प्रोफेसर श्रीवास्तव, कि अंततः जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हम ये उम्मीद कर रहे थे आज से 15-20 साल पहले, जिसकी तरफ प्रोफेसर भानावत ने भी इशारा किया था कि किस तरह से एक अरब स्प्रिंग और भारत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इन सब ने एक उम्मीद जगाई थी कि शायद ये पॉलिटिकल प्रोसेस को में पार्टिसिपेशन सिटीजन्स का बढ़ाने में मददगार होगा, लोगों की मोबिलाइजेशन में मददगार होगा, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, उसको और डेमोक्रेटाइज करेगा। बहुत सारे जो थिंकर्स थे सोशल मीडिया और पॉलिटिकल साइंस के, उनको ये लग रहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक तरह से रिवोल्यूशनाइज करने जा रहे हैं पूरे मीडिया स्फीयर और पब्लिक स्फीयर को, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन, उनकी वॉइसेस उभर करके आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरह से इसमें निराशा ही हाथ लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई इस तरह की अनहर्ड वॉइसेस जो आम तौर पर हमारे पब्लिक स्फीयर में नहीं सुनी जाती थी, देखी जाती थी, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था। जैसे मैं ये कहूं कि जो दलित वॉइसेस हैं, या ट्राइबल वॉइसेस हैं, विमेन वॉइसेस हैं, LGBTQ कम्युनिटीज हैं, इन सारी कम्युनिटीज को और सेक्शंस को सोशल मीडिया ने एक हथियार दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। उनकी आवाजें भी उभर करके पब्लिक स्फीयर में आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक हद तक उसने पूरे पब्लिक डिबेट को मैं ये मानता हूं कि पब्लिक डिबेट को डॉक्टर सुनील प्रताप जी, आपकी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में एक डेमोक्रेटाइजेशन जरूर हुआ है, लिमिटेड लेवल का ही है, और उसके साथ कई कंट्राडिक्शंस भी हैं जिनकी तरफ इशारा प्रोफेसर श्रीवास्तव कर रहे थे। उसके अपने कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी अंततः ब्रॉडली जो रूलिंग क्लास और जो इकोनॉमी है, या उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो अंततः ये जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बड़ी पूंजी के साथ और खास करके इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के साथ इनका जितना गहरा रिश्ता है और इनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है,
अंततः जो संभावनाएं, जो उम्मीदें, जो अपेक्षाएं इन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की जा रही थी कि वो पॉलिटिक्स को काफी चेंज कर देगा, लोगों को काफी एम्पावर करेगा, एक तरह से हमारी पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करेगा, उसमें मुझे लगता है कि एक लिमिटेड सक्सेस सी हुई है। बल्कि पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि एक तरह का जो अपेक्षा की जा रही थी, जो अरब स्प्रिंग वगैरह के समय में चल रहा था, उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि एक तरह का पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 8-10 साल में जिस तरह का पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ा है इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, उसमें एक तरह का काउंटर रिवॉल्यूशन शुरू हो गया है। और एक तरह की ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसके बारे में कई थिंकर्स बहुत ही अब क्रिटिकल तरीके से सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को, उसके रोल को पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, और खास करके सोशल मीडिया कंपनियों का जो रोल है, अंततः उसमें जितनी बड़ी पूंजी और जितना स्टेक दांव पर लगा हुआ है, अरबों डॉलर की पूंजी लगी हुई है, और उसका जो कुल मिला जुला करके उसका एल्गोरिदम है, उसकी टेक्नोलॉजी के साथ जो अटेंशन इकोनॉमी जुड़ी हुई है, उन सब ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा की है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रूलिंग क्लासेस के साथ बहुत और गहराई से जुड़े हैं। एक तरह से जो उस रिवॉल्यूशन की अपेक्षा की जा रही थी, वो काउंटर रिवॉल्यूशन और प्रोपेगेंडा के एक बड़े हथियार के रूप में उभर करके सामने आए हैं। और जो जिसके बारे में सोचना जुबॉफ कहती हैं कि एक तरह का सर्विलांस कैपिटलिज्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, या जो पूरा डिजिटल डेमोक्रेसी जिसको हम कह रहे हैं, उसके बारे में वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि एक तरह का ये सर्विलांस कैपिटलिज्म एक तरह से सिटीजन्स के साथ और सिटीजन की रोल को उसने जिस तरह से लिमिट किया है, उसके अटेंशन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको एडवर्टाइजिंग बेचने के लिए, जो लेगेसी मीडिया का एक तरह से कहिए कि क्रॉस ओवर है इसकी ओर, वो उसकी तरफ हम इशारा करते हुए लोगों को देख रहे हैं। तीसरी बात जो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जिस तरह के इको चैम्बर्स को बढ़ावा दिया है, और जिस तरह के सोशल मीडिया के अंदर की जो प्लेटफॉर्म्स की जो पोटेंशियल्स थी, उन पोटेंशियल्स को ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्सेस ने, ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट पावर ने एक तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोपेगेंडा को लोगों तक पहुंचाने में इस्तेमाल करना शुरू किया है। इंडस्ट्रियल स्केल पर जिस तरह के मैसेजेस बनाए जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, और उनको बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक डिसेमिनेट किया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण ये, मतलब जैसे आप देखिए भारत जैसी डेमोक्रेसी में जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रोल डिजिटल डिवाइड वगैरह के कारण उतना गहरा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जैसे व्हाट्सएप घर घर तक पहुंच गया है, और व्हाट्सएप पर जहां हमारे एक मित्र कहते हैं कि सुबह से ही भलाई की सप्लाई शुरू हो जाती है गुड मॉर्निंग मैसेजेस के साथ और राम राम के साथ, आप एक मिनट के लिए कभी गौर करिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस आते हैं और जितने तरह के ग्रुप्स हैं, उन मैसेजेस को लोग जो सिटीजन्स हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसमें से कितने लोग वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। ज्यादातर लोग 90% से ज्यादा लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं। ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल स्केल पर पॉलिटिकल पार्टीज, कॉर्पोरेट्स और इनका पूरा नेक्सस, ये सारा एक तरह से नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा है, डिसमिनेट कर रहा है, और एक तरह का इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है। इस इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट में एक तरह से लोगों का डंबिंग डाउन हो रहा है। लोग उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और इट्स वाइडर implications. They are not applying their mind, they're just consuming that message. और
उसका नतीजा ये हुआ है कि जो पूरा पब्लिक स्फीयर है जिसके बारे में हम अपेक्षा कर रहे थे कि वो डेमोक्रेटाइज होगा, एक एक इंडिविजुअल लेवल पर सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी के लेवल पर डिबेट एंड डिस्कशंस की हेल्दी कल्चर को आगे बढ़ाएगा, ये उसके बजाय ये हो गया है कि एक तरह का ये हेट स्पीच, फेक और डीप फेक और एक तरह का प्रोपेगेंडा, बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा नैरेटिव बैटल्स का मैदान बन गया है, जहां लोग सिर्फ इस तरह का इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं और उसको एक दूसरे के आसपास फॉरवर्ड कर रहे हैं, और दे आर जस्ट पैसिव consumer of that information. They are not actively engaging with that information or critically dealing with it. So that's the limit of individual citizens, and that also impacting their own mobilization and initiative. तो एक तरह से सिटीजन्स की इनिशिएटिव की जो चांसेस थी, जो तहरीर स्क्वायर और बाकी, यानी ट्विटर और जो रियल स्ट्रीट है उसके बीच का जो फासला है, जो वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का जो फासला है, वो और ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ने लगा है हाल के वर्षों में, क्योंकि लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं एंड दे डोंट हैव link with the real world and the questions and the problems and issues and demands of the real world. और इसका नतीजा ये हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि देयर आर पॉसिबिलिटीज, and it may be there are certain cases where you can see people are able to organize themselves, people are able to mobilize their power, like during the farmers movement they tried to do that, but उसकी एक लिमिटेशंस हैं जो एक पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट के सामने सिटीजन इनिशिएटिव्स की जगह लगातार श्रिंक कर रही है, और ये मैं महसूस करता हूं कि पब्लिक स्फीयर इज नाउ मोर पोल्यूटेड, मोर पोलराइज्ड, and it's not in true sense a democratic public sphere where citizens are exchanging their ideas and issues equally at equal level. So that is what I would like to say here and conclude here. So I hope I have limited my presentation or the ideas in the given time. Thank you so much for giving me this opportunity. बहुत बहुत आभार आनंद प्रधान जी, आपने सीमित समय में विचार के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने रखे कि किस तरह से जो अपेक्षाएं सोशल मीडिया से थी कि वो एक लोकतांत्रिकरण समाज की स्थापना करेंगी, उसके बजाय वो एक जो आपने एक शब्द का उपयोग किया कि सर्वेलेंस कैपिटलिज्म के दौर में हम लोग जा रहे हैं। ये एक ऐसे मैदान बन गए हैं जहाँ हेट स्पीच या डीप फेक जैसी जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। शायद हम एक ऐसे डेमोक्रेसी की बात करते करते हम ऐसे डिजिटल डिक्टेटरशिप के दौर में चले गए हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों ने, क्योंकि जिन अखबारों की टीवी चैनल्स की हम बात करते हैं उनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वहां करोड़ों के उनके सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ गिने चुने अपवाद आप दे सकते हैं जहां आम पत्रकार या आदमी ने अपनी कोशिश की है प्रेजेंस की, लेकिन उस सारे जो बाजार का आक्रामक दौर है उसमें ये सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपने बहुत सारे गर्भित बिंदु हमारे सामने रखे, और अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर त्रिशु शर्मा को। त्रिशु जी इस समय एमईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, वहाँ का एमईटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, उसके डीन और डायरेक्टर हैं। पिछले लगभग 1.5 दशक से आप मीडिया शिक्षा से जुड़े हुए हैं। संयोग से जब आपने हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना करियर शुरू किया था, उस समय पहली बार मेरा उनसे मिलना उसी विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ था। तब से लेकर अब तक मैं उनके उस अकादमिक दौर को बहुत ही निकटता से देख रहा हूं। आप निरंतर शोध अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं। आपके पेपर्स अनेक जर्नल्स में भी प्रकाशित होते रहे हैं, और कुछ प्रमुख जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी आपने अध्यापन कार्य किया है। आईपी यूनिवर्सिटी के साथ आपका जुड़ाव रहा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने अपनी एक लंबी इनिंग खेली और वहीं आपने कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की।
आपके निर्देशन में 6 पीएचडी विद्यार्थी अभी तक पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं और अनेक एफडीपीज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। वर्तमान में आप, जैसा मैंने कहा कि एमआईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश ग्वालियर में पोस्टेड है और वहाँ शिक्षण और शोध अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर टिशू शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस अवसर पर अपने कुछ विचार इस विषय पर साझा करें। प्रोफेसर टिशू शर्मा। Thank you, Sanjeev Bhanawat sir, for inviting me for this thing. I am feeling proud to share my thoughts in the presence of Pradhan sir. I have listened him a lot on TV and from the practitioners, those who are doing their journalism practice in the field. So I had a lot of good words from Anand Pradhan sir. So my namaskar to Pradhan sir आपको, हुड्डा sir आपको नमस्कार, उषा मैडम, प्रियंका जी एंड ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स। सर, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक यू हैव सेलेक्टेड on the eve of 26th January, on 75th Republic Day. We are going to celebrate tomorrow, and that's the great, very valid topic you have selected for discussion over here. So I would like to begin with the little bit history. I'm not against social media. I will never disclaim the importance of social media also. But if we talk about like the previous experts has, आपने भी कहा अरब स्प्रिंग से लेकर आपने डीप फेक की बात की और इंडिया अगेंस्ट करप्शन you have told about. But the thing is, if we talk about India during emergency, so there were a big movement. At that time, there were no social media. If we talk about during the regime of 1989, at the time of Mandal Commission and all something, there was big movement, and there were no social media. And sir talked about that this social media has provided space to ladies, Dalits, and tribals also. That's really great. But there were ladies also earlier in terms of our former Prime Minister to current Chief Ministers also, those who manage their image, identity, political parties without social media. So social media has equivalent importance into political scenario in India. We can begin with India against corruption, where we got firstly the miscall concept. The miscall concept, I would like to correlate today's example, which I just implemented in my educational institute during when we got an invitation from the government of Madhya Pradesh that today our Honorable Prime Minister is going to address people on National Voters Day. And they motivate the first time voters for the importance of voting. So we provided a telecast to them, and there were a link at which the first time voters has to register, through which they can directly go to the link where our Honorable Prime Minister were addressing to the gathering. So that was again a use of digital media to have a direct connect with the youth specifically, and within youth, the first time voters specifically. So it has a long-term campaign plan in terms of increasing political awareness among youth, specifically for first time voting and to have the importance of voting. Digital consumers we have become these days in the era of political communication these days with the people, specifically youth, and the people we can call it the above 60 age group. They have become specifically the digital consumers. As Anand Pradhan sir rightly said, that 90 or 95% of the users of WhatsApp, they are consumers only. They are not content creators. They are not creating content. They are just becoming a forwarding agency from one message to other message, from one group to other groups, because each one of us also are connected with several WhatsApp group at our WhatsApp network also. Example of political influence through social media, the latest example, which is ruling into the political party ruling into the Delhi state and Punjab state. They started their campaigning through social media with the help of miscall campaign through India Against Corruption, the highly utilization. From then to till today, the another example of effective use of social media for political communication and political strategy is an example of Jan Suraj Yatra by Prashant Kishore. He is the man who initiated
in a very professional way about political campaigning in a digital era. So the social media impact is a vice versa on Indian politics. For example, the benefit is the people, those who don't get rights to raise their voice on the national media broadcasting channels, they got their own channels on like YouTube and other social media platforms, and they are telling their viewpoints to the general public. So it means they are reaching to the mass. The one thing. Secondly, the propaganda setting is doing these days by all political parties. I'm not mentioning one political specific party, the all political parties in the regional context, in national context, the propaganda setting is being done by all major political parties in the era of social media. Earlier, when we started the consumption of Facebook, I think majority of us are used to the name of Orkut also. Now it is gone. But when we started using Facebook specifically, so we have never thought of that there will be an organic followers or inorganic followers. But now there is a trend of organic and inorganic for followers, not only at Facebook, but also at Twitter, that is X these days, and at Instagram, which is highly popular among the youth audience, specifically from age 15 to 38 age group, specifically. So in community involvement and community development in the digital era, in digital democracy, has increased very widely due to this social media. Earlier, we have only one source of information, specifically newspapers. Pre-2000 era I'm talking about. Or we have a strong bent of listening All India Radio News also. Because of these were considered as the most authentic and reachable mediums of media in terms of getting any type of news. But post 2000, when 24/7 news channels had come, and later on this social media has come, so this social media has created a new trend, that is a political memes also. And within the political communication in the era of social media and the effect of social media, these political memes are damaging the reputation and image of each others. Suppose if I belong to one political party, I'm spreading any memes for which I just want to damage their prestige, damage their image, damage their reputation. And these days, all political parties are spending huge amount in terms of reputation management as far as their PR is concerned. And they are spending huge amount of money only on PR just to maintain their reputation, which is very important in terms of reaching to the mass. Social media campaigns are diluting youth also from the major concern issues or major burning issues of our society. I don't want to mention specific issues which may lead to any political statement and all. But if we are talking about the impact of social media on Indian politics, so definitely all politicians belong to all political parties. Their one and important agenda is to get into the power. And to get into the power, they just are using social media by any way. Every social party, every political person, political active person, they are having different social media handles on across all the basic platforms. Is it diluting the decision making power specifically of the first time voters or not? This is a question. These questions may be answered by the esteemed political party senior leaders, that do you want to influence the decision of first time voters or not with the effective use of this social media? Or are you misusing social media? They know it very well. Are they using or misusing? I'm talking about political parties and their social media handlers and their media wings and their national media coordinators, whatever, whosoever team they have. But the thing is,
whatever politics they are doing with the help of this social media, they just focus on the major burning issues of the society. That is to educate people in the right direction. That is to guide people in the right direction. Recently, a movie released, and the actor of this movie was Shah Rukh Khan, who talked about that how Indian youth is going to Western countries in an illegal way. We call it donkey. This is a very burning issue in northern part of India and in the southern part of India. The majority of youth are moving in an illegal way, and social media is not talking about it. Political campaigns are not talking about it. They are talking about problems, but the solutions are missing. So solution-based campaign, if they can drive, so that can be a very effective use of social media for all political parties. I would like to request the basic political communicators, those who are actively engaged with the political parties, that they must focus on solution-based media campaigns. And I hope so that being a last speaker in any seminar, we have to take care of the time. But I would like to conclude with this thing, that if the political strategists, the political communicators, and the people who are making strategies for digital media, for basic political parties, they must focus on solution-based campaigns, not only talking about the problems only. With this, thank you very much, Sanjeev Bhanawat sir and other participants. Thank you from my side. बहुत बहुत आभार त्रिशु भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सॉल्यूशन बेस्ड कैंपेन, सोशल मीडिया, डिजिटल डेमोक्रेसी के अपने फायदे, अपने नुकसान, किस तरह से हम इसका उपयोग करें, किस तरह से राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, कैसे युवा भटक रहा है, आदि बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आपने सोशल मीडिया की जो पूर्व पीठिका थी, उस समय भी आंदोलन हुए, काफ़ी सशक्त आंदोलन चलाए गए, तो बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चर्चा की सार्थकता है यदि उसमें कुछ प्रॉपर पार्टिसिपेट हो सके। तो हमारे साथ जो मित्र जुड़े हुए हैं, उनमें से यदि किसी का कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो, तो बहुत संक्षेप में, चूंकि सब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उनसे अनुरोध है कि अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें और सवाल पूछें या टिप्पणी करें। जी, मैं देख रहा हूँ इसमें मनीष जैसल जुड़े हैं ग्वालियर से, IIMT यूनिवर्सिटी से। मनीष जैसल है, डॉक्टर ज्योत्सना वर्मा शायद कोटा से हैं, जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ। तो कोई भी यदि सवाल पूछना चाहे या कोई टिप्पणी करना चाहे, नहीं तो फिर आभार प्रदर्शन और समापन की ओर। मुझे लगता नहीं है शायद कोई, तो चलिए इसके पूर्व के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आयुषी सचदेव। हाँ हेलो जी सर, प्रणाम। हाँ, कौन? आशीष? जी सर। हाँ जी। मैं आशीष, पत्रकारिता छात्र, अभी मगध विश्वविद्यालय बिहार से। सर, मेरा प्रश्न है कि जैसे ये डीप फेक का प्रचलन अभी बहुत अधिक बढ़ गया है, और कई सारे ऐसे लोग हैं, कभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वीडियो जो है वो बना करके यूट्यूब पर प्रसारित कर दे रहा है। और अभी हाल ही में जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो भगवान राम के आंख से जो सर उसमें वीडियो को जो वो किसी दूसरे टाइप से बना करके प्रसारित किया गया है, तो उसको रोकने का सर सर्वोत्तम उपाय क्या है? सवाल किनसे है ये? सर, वैसे तो इतना उपाय भी आसानी से मिल जाता है, तो सरकार सोशल मीडिया कंपनीज को क्यों बुलाती, उनको चुनौतियां, वार्निंग क्यों देती है ना? सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कोई ऐसा वीडियो लगता है जो नैतिक, लीगल, एथिकल खराब है, तो आप उसको तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप उनको इमीडिएट रिपोर्ट करिए और उस पर लिखिए कि दे आर वायलेटिंग द कम्युनिटी नॉर्म्स। और ऐसा आप अपने और दूसरे भी अपने निकटती सहकर्मियों से या अपने क्लासमेट्स को भी कह सकते हैं, उनको रिपोर्ट करवाइए। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, अब इनको जो भी सोशल मीडिया हो उनको उस पर एक्शन लेना होता है, और वो उसको डिलीट कर देती है। आप जब भी कभी अपना फेसबुक की फीड को स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ चीज़ें उस पर लिखा आता है कि दिस कंटेंट हैज़ बिन डिलीटेड,
तो वो डायरेक्टली फेसबुक की जो टेक्निकल टीम है उनके द्वारा लिया गया एक्शन होता है। तो आपको अगर कुछ भी लगता है कि जो आपको लगता है कि ये गलत है या फिर ये इसके साथ इस पिक्चर वीडियो के साथ मैनिपुलेशन किया गया है, तो तुरंत उसको रिपोर्ट करिए। सबसे इजी समाधान ये है। लेकिन त्रिशूल जी, फेसबुक का तो ये समझ में नहीं आता है कि वो इसी तरह के वो कोई भी कंटेंट डिलीट कर देते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो एआई की टीम, मेरे ख्याल एआई बैठते हैं वहां पर, कोई व्यक्ति तो बैठता नहीं है। मैंने कोविड की पोस्ट डाली थी कि हमारी कोविड काल में इतनी वेबिनार्स हुई हैं, उसमें भी मेरे पास चेतावनी आ गई कि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, और उसको रोक दिया। तो वो कोविड देखा होगा उन्होंने और उसको रोक दिया। सर अभी ऑन रिकॉर्ड बोल नहीं पाऊंगा, कुछ चीजें उनके पास ना कीवर्ड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन हाँ, कीवर्ड्स हाँ। के अनुरूप भी कुछ चीजें डिलीट हो जाती हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, कल वो धनंजय चोपड़ा की फेसबुक देख रहा था, उनका भी शायद उन्होंने रोक दिया। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ये चीज तय कर पाना। लेकिन उनका सवाल है कि डीप फेक की इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए कि वो अपलोड ही नहीं हो सके, क्योंकि डैमेज तो कर दिया उन्होंने। हालांकि अब हर सोशल मीडिया की मेरे ख्याल गाइडलाइंस आ गई हैं। यूट्यूब ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है, सबको मेल किया है जिनके चैनल्स हैं, जिस पर उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में चेतावनी दी है। तो अब कितना इसका असर होगा और ये नियम कानून कितने प्रभावी होंगे, समय बताएगा। हाँ आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका कोई समाधान नहीं है, टेक्नोलॉजी में इसका कोई समाधान नहीं है। जी। इसका समाधान व्यापक तौर पर एक मीडिया और सोशल मीडिया साक्षरता में है। एक तरह की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रियल पॉलिटिक्स ही इसका आंसर खोज सकती है, जो लोगों को इतना सचेत और सतर्क बनाए। अभी अगर लोग पैसिव कंज्यूमर होंगे तो कोई भी इसको नहीं रोक पाएगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो मैं कह रहा था कि ये एक तरह का सर्विलांस कैपिटलिज्म का जो आइडिया है, उसमें देखिए ये जो अटेंशन इकोनॉमी है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम इस तरह से बनाया गया है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा समय तक आपको वो इंगेज करके रखें, अपने प्लेटफॉर्म पर रखें। और जितना इंगेजमेंट आपका है, यानी आपका अटेंशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, उसी अटेंशन को वो एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, वो इस तरह की डीप फेक को, पोलराइजिंग कंटेंट को, हेटफुल स्पीच को प्रमोट करती है, क्योंकि वो ज्यादा इंगेज करता है लोगों को। और जब वो इंगेज करता है तो उसी से वो पैसा बनाते हैं। तो उनकी भी कोई दिलचस्पी नहीं है इसको रोकने में। और जाहिर है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पावरफुल ग्रुप्स हैं, जो इंडस्ट्रियल स्केल पर इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उससे निपटने का कोई आसान सीधा रेगुलेटरी या आप कह लीजिए कि टेक्नोलॉजिकल साधन नहीं है। इसका एकमात्र तरीका रियल लाइफ में जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, उनको सजग और सतर्क बनाना, मीडिया साक्षरता पैदा करना, सोशल मीडिया के प्रति एक तरह का क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में डेवलप करना, यही इसका एकमात्र रास्ता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन आनंद जी, मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन में इतना हस्तक्षेप हो गया है कि बचना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। कल मैं ऐसे घर पे ही बात कर रहा था कि 3 दिन छुट्टियां हैं, होटल ताज में चल सकते हैं क्या, क्या इसकी रेट्स वगैरह है। तो देखा तो 1.5 लाख रुपए के आसपास वो आ रहा था। इतनी सी बात हुई। मुझे लगता है कि मोबाइल भी आपकी बात सुन रहा है। और मेरे पास आज मेल आ गया कि होटल ताज में 20% डिस्काउंट है यदि आप वो एक टाइम का मील बुक करा लेते हैं। तब ये कहां से इनको पता चल रहा है कि ये सब चीजें? इसीलिए तो इसको सर्विलांस कैपिटलिज्म कहा जा रहा है। तो ये आपका हर वाक्य सुना जा रहा है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और उसको मोनेटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा चुनौती आने वाले टाइम में होगी। कि बल्कि मैं तो कई बार अपनी बातचीत में भी कहा है कि ऐसा मोबाइल भी आ जाएगा कि जब मैं किसी के यहाँ जाऊंगा वो मेरी फोटो खींचेगा, मैं उसकी खींचूंगा, और हम ट्रांसलेट कर लेंगे कि वो क्या सोच रहा है। तब समाज कैसा होगा, इसकी कल्पना कीजिए आप। ये समाज वैज्ञानिक शोध करेंगे इस पे। नहीं, वो 1984 में आ चुका है, बहुत अच्छा। पहले वो लिख गए। 1984 उपन्यास आप पढ़िए। अच्छा बिग ब्रदर इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू। ओके। जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत पहले देख लिया है वो।
कभी कभी लगता है दुनिया में 10-20 साल बाद में आते बहुत कुछ देखते हैं, फिर संतोष होता है कि जो हमने देखा है नई पीढ़ी ने नहीं देखा है। चलिए साहब, और कोई सवाल नहीं तो हम हमारे अतिथियों का ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहेंगे। तो मैं हमारी जो फैकल्टी है मासकॉम की, प्रियंका सिंह, उनसे अनुरोध करूंगा कि एक एक करके हमारे सारे अतिथियों का ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो जो है वो प्रेजेंट करें। So thank you so much to all my invited speakers who took his valuable time, and ये सर्टिफिकेट जो हम दे रहे हैं या मेमेंटो दे रहे हैं, ये किसी सर्टिफिकेशन के पर्पज से नहीं दे रहे, बल्कि हम इसलिए दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बदल गया है, बदलते परिवेश में हार्ड कॉपी से ई कॉपी की तरफ आ गया है, क्योंकि परिवेश बदल रहा है। हम डिजिटल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल बुके एंड डिजिटल मेमेंटो, ये इसलिए हम दे रहे हैं कि आपके पास जब होगा तो वो एक यादगार होगी, एक रिमेम्बरेंस होगा कि you have been part of this lovely webinar in the backdrop of 26th January, and इतना बढ़िया डिस्कशन हो गया, जिस डिस्कशन में पॉजिटिव, नेगेटिव, बेस्ट यूजेस, वर्स्ट यूजेस, हमने सारे मल्टीट्यूड टाइप ऑफ एनालिसिस कर ली। और कल जब हमारे बनावत सर इसकी प्रेस रिपोर्ट लिखेंगे तो उसकी इतनी बढ़िया उसकी एनालिसिस होगी कि वो अपने आप में एक यादगार होगा। बनावत सर ने जितना प्रोग्राम किया है और जिस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट में मैं वीक रहता हूँ, लेकिन इन ये जो सोशल मीडिया पे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनता है। अगर पूरा प्रोग्राम कोई ना भी अटेंड करे और यूट्यूब पे ना भी जाए, सिर्फ रिपोर्टिंग पढ़ ले इनके लिंक्डइन और फेसबुक साइट पे, वो भी शायद उसको सफिशिएंट इनपुट देने के लिए तैयार होता है। सो दिस सर्टिफिकेशंस एंड मेमेंटोस आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिमेम्बरेंस that all of you have spared your valuable time and have been part of this wonderful and lovely session with all of us. Thank you so much. चलिए, मैं कम्युनिकेशन टुडे की ओर से भी सभी का आभार प्रकट करता हूं, इस सूचना के साथ कि हमारे जो 29 जनवरी की वेबिनार है वो हम एक तरह से पत्रकारिता दिवस, पहला अखबार उस दिन निकला था, हम सेलिब्रेट करेंगे। और उसमें 3 कुलपतियों, पूर्व कुलपति और वर्तमान कुलपतियों की सहभागिता है। प्रोफेसर के.जी. सुरेश भोपाल से जुड़ेंगे, इंदौर से प्रोफेसर एम.एस. परमार जुड़ेंगे और बनारस से प्रोफेसर राम मोहन पाठक। ये तीनों अलग अलग समय पर या तो कुलपति हैं या रहे हैं। और 30 तारीख को चूंकि पूरा देश राममय हो रहा है, तो हमें लगा क्यों नहीं कि एक इस विषय पर हम भी चर्चा करें। तो थोड़ा सा हट करके साहित्य और फिल्मों में राम, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसमें हमारे साथ 3 एक्सपर्ट होंगे, जिसमें साहित्य में तो नवीन लोहिनी जी हैं मेरठ से, और एक आशीष पाठक और एक संजीव नाम स्लिप हो रहा है अभी। तो 3 जने हमारे पास होंगे, नोएडा, मेरठ और यहाँ से तीनों एक्सपर्ट्स हैं, जो 30 जनवरी को, समय हमारा वही शाम को 6 बजे, और लिंक यही है जो हम आपको शेयर करते हैं, यही लिंक हर एक वेबिनार के लिए होता है। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं विभाग के अध्यक्ष आयुषी सचदेव चोपड़ा से अनुरोध करूंगा कि वे हम सभी का आभार प्रदर्शन करें। आयुषी जी। Thank you, sir. Thank you, Sanjeev Bhanawat, sir. Indeed, I'll say today it is the great opportunity for me to present vote of thanks to the great dignitaries and the expert speakers, Anand Pradhan sir, Trishu sir and Anup Srivastav sir. हमेशा नाम सुना है, आज इनके पूरे एक्सपीरियंस को, इनके इंटेलेक्चुअल थॉट्स को सुन के मैं आई एम रियली वेरी वेरी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड एंड आई थैंक all the 3 great speakers and dignitaries. Thank you so much. I also like to present my thanks to Professor Sanjeev Bhanawat sir and Professor M.N. Huda sir for visualizing this great intellectual series, जो कि सबको बहुत बहुत help कर रही है कि सब लोग अपने घर पे with all comforts they can gain knowledge. Knowledge is something which can be gained at any time, at any level. So thank you. Also a great thanks to my team, supporting team, Usha ma'am, Priyanka ma'am, and all the backend people, and my dear participants who always support by joining on time, being with us for the whole seminar and registering on time. So you may also register for the upcoming webinars. Thank you all. Thank you so much. चलिए, अब मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि इसे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें और वो सर्टिफिकेट जनरेट